Yes, and our discussion will be broadly on three parameters, right? This discussion is on the CTC, that how much CTC is offered by various companies, because right now only the list has come, right? The CTC has not been released yet, right? But of course, I know that our all of you have this interest in knowing about that what will be the CTC, right? Second, the profile, right? What these companies are going to offer, and third is that what are the broad preparations you can start from now onwards, right? तो ये तीन पॉइंट्स है जिनके ऊपर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आप लोग अपने क्वेश्चंस अभी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अनम्यूट योर माइक राइट नाउ, राइट? Sorry, I have mute your mic as at the moment, but we will unmute you after 30 minutes, right? All right. So great great to have all of you here. Yes. So I'll start first basic analysis. That analysis is based on the CTC, right? The CTC is primarily center-wise CTC, right? So if you'll see on the top, right, this is the minimum CTC that is offered, that will be offered. Okay, this is minimum CTC, right? As you know that all these CTCs, minimum CTC that will be offered on that day. So this is between 17 to 20 lakhs per annum. Then 12 to 14 lakhs per annum, 11 to 11.5 lakhs per annum, right? For example, if we talk about Ahmedabad Center, right? So in Ahmedabad Center, at this moment, right? When I'm saying at this moment, अभी की बात करें, so there are no company which will offer more than 17 to 20 lakhs, right? कोई भी कंपनी अभी अहमदाबाद में डे प्रीमियर पे नहीं आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो इसके लिए अगर आपको और क्लैरिटी अगर रिक्वायर्ड है, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डे प्रीमियर, राइट? सो ये जो क्राइटेरियाज है, राइट, दिस क्राइटेरिया इज बेसिकली फॉर द कंपनीज। इफ अ कंपनी इज पार्टिसिपेटिंग ऑन डे प्रीमियर, दैट इज द स्टार्ट ऑफ द कैंपस। जिस दिन कैंपस स्टार्ट हो रहा है, उस दिन की अगर हम बात करते हैं, तो उस दिन मिनिमम सीटीसी दे हैव टू ऑफर इज 17 lakhs to 20 lakhs. 17 in case if they are hiring more than 15 candidates, and 20 lakhs if it is less than 15 candidates, right? So that much CTC they have to offer at least, right? तो इसलिए डे प्रीमियर है, राइट? सो ये वो डे है जिस डे में हर कोई सेलेक्ट होना चाहता है, यस ऑफ कोर्स। लेकिन ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ कंपनीज कम होती हैं, और वैकेंसीज भी प्रोपोर्शनेटली कम होती है। Second, day one, 12 to 14 lakhs is the minimum CTC, then 11 to 11.5, and just like that. Okay. So day 5 tak, there is a minimum criteria, and that minimum is 9 lakhs per annum. Okay. उसके बाद कोई क्राइटेरिया नहीं है if it company is participating on day 6 and day 7. क्लियर है आप लोगों को? तो ये क्राइटेरियाज हैं। अब you know that which company is participating on which particular day. Are you getting my point? आपको ये पता है कि कौन सी कंपनी किस दिन पार्टिसिपेट कर रही है, दैट डेटा इज अवेलेबल विथ यू, राइट? जो अभी लिस्ट आई है, उस लिस्ट में दिया हुआ है दैट फॉर एग्जांपल डेलॉइट विल बी पार्टिसिपेटिंग on 19th of August, right, in Ahmedabad. So you know that on which date is participating. Based on that, you can plot whether it is day 1, day 2, or day 3, whatever. क्लियर है? सो आप अगर वो देखते हो, तो उसके बेसिस पे यू विल फाइंड दैट in Ahmedabad, those who are appearing in Ahmedabad, there are total 5 companies which are appearing as of now. So 2 are coming for 12 to 14 lakhs, one on 11 to 11.5, one 10 to 10.5, and again one 9 to 9.5, right? तो अहमदाबाद सेंटर में अभी इस टाइप की का सिनेरियो है, ठीक है? बेंगलुरु सेंटर की अगर बात करते हैं, बेंगलुरु सेंटर में टोटल 26 कंपनीज हैं, और इन 26 कंपनीज में से डे प्रीमियर, राइट, डे प्रीमियर
you will find that four companies are coming, right? So जो लोग बेंगलुरु में, they must be very happy कि चार companies आ रही हैं which are offering more than 17 and 20 lakhs, right? So in fact 11 companies are coming on day one, right? So this is also a big number. So Bengaluru this time is kind of on a second number after Mumbai, if you see, right? Because इतनी कंपनीज ऑन डे टू कहीं भी नहीं आ रही आफ्टर मुंबई, राइट? सो जितने भी लोगों ने बेंगलुरु लिया है उनके लिए इस बार थोड़ी लॉटरी लग गई है, ठीक है? So 11 companies are coming for minimum 12 to 14, right? And then three companies on 11 to 11.5, 3, 2, and 3, just like that. Okay. So this is for Bangalore. Chennai, if you see, one company is coming on day premier, five on day one. That is applying. That is five companies offering more than 12 or 14 lakhs, and then it's like that. Okay. Delhi, if we talk about four companies again on day premier, right? Six companies are coming on day one, right? Offering 12 to 14 lakhs, right? And seven companies are coming on day five, right? So that's very high. Okay, where the minimum CTC is 9 lakhs. So अगर आप देखते हो दिल्ली में 22 कंपनीज हैं, राइट? दिल्ली में 22 कंपनीज हैं, एंड आउट ऑफ those 22 companies, almost 13 are coming in first 3 days, right? And remaining are coming for the last 3 days, right? So यहाँ पर हम देखते हैं तो 72 में से सेवन कंपनीज तो फिफ्थ डे पे आ रही हैं. So net net 15 companies है, those will be offering you pretty better amount. Okay. Similarly Hyderabad की बात करें तो वन डे प्रीमियर, एंड देन टू एंड टू कंपनीज आर सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड डे, ठीक है? जयपुर में देर इज नो कंपनी ऑन डे प्रीमियर. डे वन पर एक है, डे टू पर एक है, और डे फाइव पर एक है, ठीक है? कोलकाता की बात करें तो प्रीमियर डे पर वन है, और उसके बाद 12 to 14, एंड देन थर्ड सेकंड डे पर तीन कंपनीज है, ठीक है? इसी तरह से मुंबई की बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा कंपनीज हैं, यस. लेकिन मुंबई में जो डे प्रीमियर है उसमें दो कंपनीज है अभी फिलहाल, यस. तो सबसे ज्यादा अभी देखा जाए डे प्रीमियर पर तो मुंबई में, बैंगलोर में सबसे ज्यादा है, which is definitely a surprising thing. Are you getting my point? This is definitely a surprising thing at this moment. Yes. So apart from that, there are 13 companies which are coming for uh, day one, which is good, right? As far as Mumbai is concerned. And then uh, this is the scenario. And Pune अभी तक अगर देखा जाए तो there are only five companies which are participating at the moment. Okay. Last time it was 21 companies. Okay, but of course, this number is going to get increase, right? That is what everyone is expecting, and I also believe so. Last time we saw that like the number of companies was 60 when it started, and then eventually it reached to almost 200 plus companies, right? So ये तो basically CTC की बात है. Okay, so आप लोग अगर अपना सेंटर लिख पाए, right? Which center have you opted for? So I can focus more on that particular center where most of the students have selected in, right? Right. So Chennai, then Mumbai, Pune, Delhi, Pune, Mumbai, Delhi, Jaipur, Mumbai, Kolkata, Delhi, Ahmedabad, Delhi, Kolkata, Delhi. Okay, Delhi looks quite high. Ahmedabad, Delhi. Okay, Bangalore. Okay. So if you see, बेंगलुरु में थोड़ा कम लग रहा है, बट सबसे ज्यादा कंपनीज इस बार बेंगलुरु में, मतलब सबसे ज्यादा डे प्रीमियर की कंपनीज बेंगलुरु में दिख रही है, ठीक है?
चलो, तो एक तो ये पॉइंट हो गया, और आप लोग के सेंटर्स भी क्लियर हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू, ओके, इन बिटवीन इफ देयर एनी क्विक रेलेवेंट क्वेश्चंस तो उसको ले लेते हैं। The minimum CTC is including the variable portion, right? Yes. Minimum CTC includes the variable portion also. ठीक है। तो ये जो सिटी मिनिमम सीटीसी है, फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा हुआ है 17 to 20, तो कंपनी डेफिनेटली विल ऑफर यू मोर देन दैट। लेकिन वो जो सीटीसी ऑफर करेंगे, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी, एंड कॉस्ट टू कंपनी इंक्लूड्स एवरीथिंग। Includes everything means everything, which includes variable also, and also if there are sometimes company gives you one time bonus, joining bonus, that is also included here. क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये टोटल, इसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इन शॉर्ट अगर बात करें तो ये ही है। राइट, ऑल राइट, ठीक है, चलिए ग्रेट। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइप ऑफ कंपनीज। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को जरूरी ज्यादा जरूरी पॉइंट है जिसके बारे में आपको देखना है। तो आप चाहो तो इसका एक स्नैपशॉट ले लो। यस, if you can want, you can take a quick snapshot. This is something which is very very important, because this will decide about the domain that you will be getting in, right? So on the in the left hand side you will see the organization type, right? When we are saying that company is coming, right, we don't know which type of organization is there. So in this one you will able to understand that. So in Ahmedabad, total five companies are coming. Two is industry, one is Big Four, one is PSU, and one is an exchange that is coming. Are you getting my point? So this will tell you the type of organization. Bangalore, if you will say, so Bangalore 8 is industry, 3 is Big Four, 3 is firm, PSU is 2, Big Four Global 3. ठीक है ना? तो दैट वे, सो व्हाई आई हैव पुट इट इन दी डिफरेंट शेड। इसमें हमने इसको डिफरेंट शेड में क्यों रखा है, राइट? उसका रीजन आप देख सकते हो कि आउट ऑफ 122 कंपनीज, 93 आर falling under these 4 5 categories: industry, big four, firms, PSU, and big four global. Right? 93 out of 122 are falling under this particular category. तो सबसे बड़ी कैटेगरी और सबसे ज्यादा हाईली प्रोबेबल वेयर यू विल गेट द इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी, दिस इज दिस कैटेगरी। क्लियर है आपको? आपको सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां पर है सिलेक्ट होने की? इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। और आगे जो नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ेंगी, राइट, इफ द नंबर ऑफ कंपनीज विल इंक्रीज, विच डेफिनेटली लुक्स लाइक इट विल इंक्रीज इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है ना? इसी में ज्यादा करके चांसेस हैं उसको बढ़ने के। तो आप लोग जो अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो इन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, अब इसमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो आई विल टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली एंड मुंबई, राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर देयर, राइट? फिर भी थोड़ा सा और किसी को अगर कोई पर्टिकुलर का एग्जांपल लेना होगा तो उस इंडस्ट्री का भी ले लेंगे हम लोग एग्जांपल। ठीक है ना? सो यू विल सी दैट इन केस ऑफ मुंबई, राइट, which all companies, which all industries are coming. You know industry, right? Industry is basically the company which are hiring you for their finance department. Finance department means all this financial reporting, taxation, treasury, FP&A and taxation. ठीक है? तो ये कंपनीज है: ओबेरॉय रियल्टी, मैट्रिक्स फर्टिलाइजर्स, मजगांव डॉक, राइट, स्वाम ओवरसीज, स्टार यूनियन, भारत सीरम्स, सन फार्मा एंड आइजनर एप्पल, राइट? तो ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने मुंबई में पार्टिसिपेट करा है। ठीक है, सो इसी तरह से आप और दूसरी कंपनीज दिल्ली देख सकते हो, राइट? इन दी दिल्ली, इरकॉन इंटरनेशनल, यूनिसन होटल्स, होंडा कार्स, राइट, कृष्णा मारुति, एनटीएफ फिजिक्स वाला, HCL Tech and Bharti Airtel, right? These companies are participating for their finance department. ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आप समझते हो किसी भी कंपनी का जिसमें ये 5 वर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी टाइप ऑफ कंपनीज। अब इसके अंदर और अगर हम बिग फोर की बात करते हैं,
ठीक है, तो एक बिग फोर देख लेते हैं। लेट्स से वी विल टेक बिग फोर ऑफ बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में कौन कौन सी बिग फोर्स आ रही हैं? तो PwC इज पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, EY एंड PwC LLP। ठीक है, अब आप पूछोगे PwC प्राइस वाटर हाउस एंड कंपनी LLP और प्राइस वाटर हाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट LLP में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, बट डेफिनेटली दे हैव डिफरेंट एंटिटीज, राइट? डिफरेंट एंटिटीज है तो उनका रोल जो वो ऑफर करेंगे वो रोल डिफरेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही इंडियन कंपनीज है यहाँ पर, ठीक है, मतलब इंडियन सेटअप है उनका, दिस नॉट ग्लोबल वन। तो दीज आर द कंपनीज विच आर पार्टिसिपेटिंग इन बैंगलुरु, ओके। और फर्म्स की बात करें तो यस, दिस टाइम व्हाट आई हैव सीन इज देयर आर डेफिनेटली सम गुड फर्म्स आर पार्टिसिपेटिंग, राइट? जो पहले पार्टिसिपेट जिन्होंने नहीं किया था, दोस काइंड ऑफ फर्म्स आर पार्टिसिपेटिंग, right? And which are definitely some of them are very good firms. For example, Moss Adams India LLP जो बेंगलुरु में पार्टिसिपेट कर रही है, राइट? तो दिस इज अ न्यू वन। बाकी गैलागर एंड सुरेश सुराना, राइट, ये तो पहले भी पार्टिसिपेट इन्होंने किया है इन टर्म्स ऑफ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अदर देन बिग फोर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसका ब्रेकअप देख सकते हैं, लेकिन ब्रेकअप में आप देखोगे प्राइमरली इट इज इंडस्ट्री, बिग फोर फर्म एंड PSU एंड बिग फोर ग्लोबल। तो आपका क्वेश्चन होगा कि क्या इसमें फाइनेंस की कंपनीज आ रही हैं? तो फाइनेंस की कंपनीज डेफिनेटली देयर आर वेरी वेरी फ्यू कंपनीज, ओके, वेरी फ्यू कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग। फॉर एग्जांपल फॉरेन बैंक्स, राइट? फॉरेन बैंक बेंगलुरु की बात करें तो गोल्डमैन इज कमिंग इन बेंगलुरु, राइट, डे प्रीमियर पर आ रही है। दैट मीन्स अभी प्रोफाइल क्लियर नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट विल बी कमिंग अप फॉर प्रोडक्ट कंट्रोलर बिकॉज इट इज कमिंग इन डे प्रीमियर। तो डे प्रीमियर पे आ रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि प्रोडक्ट कंट्रोलर के रोल, प्रोडक्ट कंट्रोलर के लिए आए। और प्रोडक्ट कंट्रोलर के लिए अगर वो आते हैं तो सर्टेनली आपको इंडेस 109 और सारे ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेके जाना चाहिए, ठीक है। गोल्डमैन इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, बट आई थिंक इट इज पार्टिसिपेटिंग राइट नाउ ओनली इन बेंगलुरु एट दिस मोमेंट, राइट? अभी तक की जो लिस्ट आई है। चेन्नई की बात करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज देयर, इट इज कमिंग ऑन डे वन, दैट मींस इट इज ऑफरिंग बिटवीन 12 to 14 lakhs, राइट? अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो इट इज कमिंग इन चेन्नई 12 to 14 lakhs। ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि धीरे धीरे कंपनीज दूसरे सेंटर में भी uh, आ सकती है, लेकिन वो आपको आगे की लिस्ट में पता चलेगा, ठीक है। और मुंबई में जो बैंक आ रही है दैट इज बैंक ऑफ अमेरिका, बट बैंक ऑफ अमेरिका इज कमिंग ऑन डे 3। तो सरप्राइजिंग बात यह है कि इस बार मुंबई में कोई बड़ी फॉरेन बैंक इनिशियल डेज में नहीं आ रही है। नहीं तो हर बार ये होता है कि मुंबई में कोई ना कोई बड़ी फॉरेन बैंक डे वन पर या फिर डे प्रीमियर पर जरूर पार्टिसिपेट करती है। बैंक ऑफ अमेरिका इज पार्टिसिपेटिंग ऑन डे 3। इसका मतलब ये है कि इसका जो मिनिमम CTC है दैट इज 10 to 10.5 लाख पर annum, ठीक है। इसका जो रोल होता है बैंक ऑफ अमेरिका, इट इज पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम लास्ट 4-5 अटेम्प्ट। और इसका जो रोल है दैट इज मोर इनटू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट? सो एक बार कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि इफ द फॉरेन बैंक इज कमिंग, इट इज कमिंग फॉर सम काइंड ऑफ कोर फाइनेंस रिलेटेड रोल। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? दिस कंपनीज आर कमिंग फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंट्रोलरशिप का जो रोल जिसको कंट्रोलरशिप बोलते हैं, राइट? Wherever you find the name controllership, it means financial reporting. Clear up? So it is again for financial reporting. So are there any companies which are coming for core finance? So it doesn't look like. Core finance मतलब pure equity research and core investment banking. So ऐसी अभी तक कोई core कंपनी इसमें क्लियरली नहीं समझ आ रही है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे कुछ कंपनीज हैं जो कंसल्टिंग के लिए, जहां पर आप नाम देखोगे उनका, जहां पर उन्होंने कंसल्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट आर दीज कंपनीज? जैसे कि एक कंपनी है एऑन कंसल्टिंग, राइट, इट इज पार्टिसिपेटिंग इन बेंगलुरु, डे 4 है और मिनिमम CTC इज 9 to 9.5, राइट? तो ये जो एऑन कंसल्टिंग है, राइट, दिस कंसल्टिंग इज, नाम के लिए ये कंसल्टिंग है, बट इसकी जो कंसल्टेंसी है वो अगेन अकाउंटिंग कंसल्टेंसी ज्यादा है, अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंसेस यानी पेरोल से रिलेटेड इनकी कंसल्टेंसी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो
दिस इज प्राइमरीली वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आप लोगों को मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप रोल्स अच्छे से समझे, राइट। केवल नाम पे मत जाइए, राइट। ऑल्दो आई हैव रिटन नेम्स हियर, that it is a broad classification: industry, big four firms, accounting advisory, right? NBFC, big six firms, right? Hedge fund एक ही है, right? D Shaw, okay, which is participating in Bangalore, Delhi, Hyderabad, okay. KPO, right? Then asset reconstruction companies, right? इंश्योरेंस एक्सचेंज, एक एक्सचेंज है, राइट। कंसल्टिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट। मैनेजमेंट कंसल्टिंग, सो मैनेजमेंट कंसल्टिंग के लिए देर इज one company, that is Alvarez and Marshall, right? This is one company and this is participating on day one. ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगेन इट इज इन बैंगलोर। ठीक है, तो ये प्रोबेबली हो सकता है थोड़ा सा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाला इसमें फ्लेवर आ सकता है, बट मोस्टली जो कंपनीज कंसल्टेंसी लिख रही है वो कंसल्टेंसी अकाउंटिंग कंसल्टेंसी ज्यादा है रादर देन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? यस, आई होप दी थिंग्स आर नॉट गोइंग टू टेक्निकल। यस, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन हो रहा है। ओके, अगर आप लोग कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो यस प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। ओके, सो मैंडेटरी टू अटेंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओके, ये देखो अभी आज का जो हमारा सेशन है वो एनालिसिस के ऊपर ज्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके ऐसे कोई जेनरिक क्वेश्चन है तो ये है कि एक ही दिन पहले है ओरिएंटेशन। पहले बहुत जल्दी होते थे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो उसमें स्टूडेंट्स उसको स्किप कर देते थे। अभी जस्ट अ डे बिफोर, राइट, तो यू शुड सर्टेनली अटेंड इट। अच्छा ही होता है अगर आप एक दिन जा ही रहे हो तो एक दिन पहले उसको अटेंड कर लो। You will get to know about what kind of companies are participating, and you will make some good connects also over there. So when you are going over there, so you should definitely uh, get that particular opportunity. Clear आपको? Okay, तो analysis में this part is clear. I think this is something which is more important, so that you can start thinking from this angle कि अब मुझे यहाँ पर preparations क्या करनी है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज सीटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कौन सी कंपनी कौन सी प्रोफाइल सबसे ज्यादा ऑफर कर रही है। ठीक है, कौन सी प्रोफाइल है जो सबसे ज्यादा ऑफर कर रही है, वो अब आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो 17 to 20 lakhs दिस पर्टिकुलर कंपनी विच इज एक्सेंचर। ठीक है, एक्सेंचर सबसे ज्यादा ऑफर कर रही है, डे प्रीमियर पर आ रही है, और कहां पर आ रही है? सभी मेट्रो, मतलब मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बैंगलोर, ऑल फोर, एंड डे प्रीमियर। ठीक है, दिस इज कमिंग, ये जो कंपनी है ये ये बेसिकली आ रही है आईटी कंसल्टेंसी के लिए, राइट। आईटी कंसल्टेंसी के लिए ये आपको ऑफर करेंगी। और मैंने हर बार देखा है यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा शॉर्ट लिस्टिंग का इशू होता है, और शॉर्ट लिस्टिंग नॉर्मली रैंक होल्डर्स की ज्यादा होती है, बट our package is super high in this particular case, right? We have seen around 22, 24, 25 also in case of this particular company, right? इसमें आईटी कंसल्टेंसी के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, ओपनिंग्स इसमें हार्डली कुछ होती है, राइट। सिंगल डिजिट ओपनिंग्स ही जनरली होती है, बट आप लोग अगर इसके लिए, जो लोग भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं, डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर वेल। ठीक है, फॉरेन बैंक जो एक आ रही है, डेफिनेटली इट इज ऑफरिंग वेल, विच इज गोल्डमैन। हमने ऑलरेडी बात कर ली थी इसकी। गोल्डमैन सबसे ज्यादा ऑफर कर रही है डे प्रीमियर पर। हेज फंड डी शॉ, राइट, डी शॉ हैदराबाद, दिल्ली और बैंगलोर, तीन सेंटर में आ रही है, राइट। ये भी डे प्रीमियर पर आ रही है, तो द पैकेज मस्ट बी वेरी वेरी हाई। ठीक है, एंड इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी। डी शॉ इज अ फैंटास्टिक कंपनी, इट इज अ हेज फंड,
जिनको कोर फाइनेंस में रोल चाहिए, एंड इफ यू आर एबल टू क्रैक दी श्योर डेफिनेटली you will you will be very happy that you are starting with a fantastic role and fantastic company. ठीक है, और डेफिनेटली सीटीसी इज ऑल्सो ग्रेट। ठीक है, तो जो डे प्रीमियर पर आ रही है उसमें से एक तो एडवाइजरी कंपनी दैट इज एक्सेंचर, फॉरेन बैंक, थ्री दिस हेज फंड, एंड फोर इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? सो इंडस्ट्री में फर्स्ट इज कैन पैक इंडिया, राइट। ये कहाँ आ रही है? ये आ रही है पुणे में, राइट। सो पुणे में एक इंडस्ट्री है विच इज पार्टिसिपेटिंग ऑन डे प्रीमियर। सो गुड न्यूज फॉर पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन पुणे, राइट। कंपेरेटिवली पुणे में कंपटीशन बोलते हैं कि कम होती है, राइट, कंपेयर टू मुंबई, दिल्ली और जो मेट्रोज के सेंटर्स हैं, राइट। तो पुणे में आप जिन लोगों ने लिया है, ठीक है, होपफुली इफ दे विल गेट दिस। कोलकाता में आईटीसी, दिल्ली में भारती एयरटेल, और बेंगलुरु में भी आईटीसी, ये सब डे प्रीमियर में पार्टिसिपेट करिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री। ठीक है, तो uh, ये मेन एनालिसिस जो हमने करा है दिस इज बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री, ओके। और उसके बाद फिर आप डे डे टू डे थ्री इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एनालिसिस है, राइट, आप अपने हिसाब से मल्टीपल एनालिसिस कर सकते हो। किसी को क्वेरीज हो इसको लेकर तो बताएं, राइट। दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ अवर डिस्कशन। अब सेकंड हाफ, जैसा मैंने आपको बोला था कि सीटीसी के बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रोफाइल्स क्या क्या लोग ऑफर करते हैं, और प्रोफाइल के साथ में एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, सो दैट लास्ट मोमेंट पे आपको इन सब चीजों के लिए रश ना हो। ठीक है, तो अगर यहाँ तक किसी की कोई क्वेरीज हो तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क। ओके सर, मुझे बहुत डीआर है, आपको कैंपस इतना अप्लाई कर रहा हूँ, नो रिप्लाई। ओके साहिल, अरे अभी तो 2 हफ्ते हुए, राइट, सीए कंप्लीट किए, राइट, डोंट वरी। एंड डोंट वरी, लाइक बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एवरीवन गेट्स जॉब, राइट। आज तक हमने 3,000 लोगों का करियर ग्राफ देखा है, राइट। नो वन फेस्ड एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब, राइट। ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, जल्दी रिप्लाई नहीं आता है, राइट। रीजन उसका ये है कि इट टेक्स 10-15 डेज मिनिमम, राइट। अगर हम नॉर्मली जॉब पोर्टल्स और उस पर अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो और देखो, ऐसा नहीं कि लाइक कैंपस ऑफ कैंपस दोनों मिक्स करके ही आपको चलना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्योरली ऑफ कैंपस पर डिपेंडेंट रहो या प्योरली कैंपस पर डिपेंडेंट रहो, ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है, दोनों चीजें साथ में करो। ठीक है, डोंट वरी, यू विल गेट समथिंग। We have seen people having multiple attempts, average articleship experience, and average communication skills. They have also got good opportunities. Can you please show us the day-wise CTC once again? Day-wise CTC, yes. This is the day-wise CTC. This is minimum CTC. Hmm? What roles will NBFCs offer in Mumbai? देखो, NBFCs ने अभी रोल एकदम क्लियर लिखे नहीं है, लेकिन most likely they will offer credit management, right? But I am saying most likely. I am, unless the roles will come, we can't comment on that. But it looks like, or they will offer something in their finance department, right? तो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी हो सकता है और क्रेडिट मैनेजमेंट भी हो सकता है। ओके, अहमदाबाद का भी ब्रीफिंग करिए ना प्लीज। अहमदाबाद में देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, राइट। अभी 5 कंपनीज हैं, ओके। और 5 कंपनीज में से 2 इंडस्ट्री है, एक बिग फोर है, एक पीएसयू है, और एक एक्सचेंज है। ठीक है, सो अभी कम कंपनीज हैं, ठीक है। सो आई बिलीव इवेंचुअली इट शुड इंक्रीज, बट कंपनीज अच्छी हैं, राइट। भले ही अभी 5 कंपनीज हैं, बट जितनी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं दे आर नोन गुड नेम्स, बिग नेम्स। ठीक है, हाँ, अकाउंटिंग,
अकाउंटिंग एडवाइजरी देखो, अकाउंटिंग एडवाइजरी का मतलब ये होता है कि हम लोग कंसल्टेंसी इंडिया से इस पर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सेंचर है, एक्सेंचर दोनों रोल्स के लिए आती है। एक्सेंचर आईटी कंसल्टिंग के लिए भी आती है और अकाउंटिंग एडवाइजरी के लिए भी आती है। यहाँ पर जो हम डे प्रीमियर पर देख रहे हैं वो आईटी कंसल्टेंसी के लिए आ रही है। मतलब जो उनका मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का एक डिवीजन होता है जिसमें दे प्रोवाइड आईटी कंसल्टेंसी, दैट इज दे आर कमिंग फॉर। अगर वो लेटर डेज पे आती है तो फिर वो या तो अकाउंटिंग एडवाइजरी या फिर जो उनका सैप कंसल्टेंसी होता है उसके लिए आती है। हाउ टू रिसर्च अबाउट द कंपनी इन एन इफेक्टिव मैनर। हाउ टू रिसर्च अबाउट द कंपनी। देखो, रिसर्च करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली वी लुक फॉर दी ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट हम लोग देखते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन सबको है कि लाइक लुक फॉर इन्वेस्टर रिलेशंस रिपोर्ट, ठीक है। जब आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, तो एक तो एनुअल रिपोर्ट होती है, जैसे कि रिलायंस का मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, ठीक है। सो जब आप रिलायंस का देखोगे तो इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन आएगा जिसमें से आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करते हो और वहीं पर आपको प्रेजेंटेशंस मिलेंगे, फाइनेंशियल प्रेजेंटेशंस। सो यहाँ से आपको जो की हाइलाइट्स चाहिए होती है वो आपको फास्ट मिलेगी। फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट इज वेरी लेंथी रिपोर्ट, वेरी डिफिकल्ट टू रीड। इफ यू गो टू दी प्रेजेंटेशंस, राइट, ये प्रेजेंटेशंस में आपको चीजें फास्ट मिलने वाली है, ठीक है ना। दैट वे वन हैज टू look into it. Okay. Can you please show day one list of uh, companies in Bangalore, right? बेंगलुरु में जो डे वन की कंपनीज हैं। सो डे वन में जो कंपनीज हैं दे आर बेसिकली, डे वन मतलब डे प्रीमियर हो गया, राइट। इट इज आईटीसी, एक्सेंचर, गोल्डमैन, डी शॉ, रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल। सॉरी, ये नहीं है, ये चार कंपनीज है, आईटीसी, एक्सेंचर, गोल्डमैन एंड डी शॉ, राइट, डे प्रीमियर पर, ठीक है। एंड देन डे वन पर देन देर आर आरवीएनएल, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, वॉकर चैंडियॉक, अगेन पीडब्ल्यूसी, एसडीसी, केपीएमजी ग्लोबल, एनटीटी डेटा, ईवा इंडिया, ठीक है। एंड अगेन पीडब्ल्यू। तो इस बार बिग फोर्स काफी पार्टिसिपेट करेंगे, विच इज अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन। पिछली बार बिग फोर इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था ज्यादा, दिस टाइम दे आर रियली पार्टिसिपेटिंग वेरी वेल, ठीक है। ओके, और क्या क्वेश्चंस हैं। इज क्रेडिट मैनेजर अ गुड रोल इन बैंक्स। यस, क्रेडिट मैनेजर अच्छा रोल है, राइट। उसमें पैसा भी है, ब्रांड भी है, लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और जिनको फाइनेंस रिलेटेड वर्क करना है वो भी है, राइट, सारी चीजें आ जाती हैं। आईसीआईसीआई बैंक नहीं आ रही इस बार, वो सबसे ज्यादा जॉब्स देती है। यस, यू आर राइट, आईसीआईसीआई बैंक देती है, बट वो दोनों रोल्स देती है, आरएम एंड क्रेडिट मैनेजर। एंड अभी लिस्ट, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, राइट, वो वाली बात है अभी, ठीक है। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, ये बढ़ेगी अभी आगे, ठीक है। तो इसलिए अभी लिस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो वाली बात है। अहमदाबाद का कुछ ब्रीफिंग प्लस हाउ कैन माई करियर मूव अहेड इफ आई स्टार्ट विद बैंक वर्किंग कैपिटल एज क्रेडिट मैनेजर। क्रेडिट मैनेजर में देर आर डेफिनेटली गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। कितने भी अटेम्प्ट्स हों तब भी आप क्रेडिट के लिए अप्लाई कर दोगे तो शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के साथ अहमदाबाद की आई हुई कंपनीज में क्या चांस है। देखो, अभी ऐसा है कि अटेम्प्ट वाइज, इस इस डिस्कशन में हमने अटेम्प्ट वाइज, मार्क्स वाइज शॉर्टलिस्टिंग की प्रोबेबिलिटी इंक्लूड नहीं की है। डेफिनेटली आई विल इंक्लूड दैट आल्सो, जिसमें ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको इनमें से कौन सी कंपनीज मिल रही है। अब बोलने को तो मुंबई सेंटर आप लोगों ने, हो सकता है आपने ऑप्ट करा और यू मे बी वेरी हैप्पी कि यार मुंबई में तो इतनी बढ़िया कंपनीज आ रही है, बेंगलुरु में इतनी अच्छी कंपनीज आ रही है, लेकिन क्या आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी उसमें, दैट इज अ बिग क्वेश्चन।
और वो तभी पता चलेगा जब आप अपने अटेम्प्ट्स और मार्क्स आपके सामने रखोगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली शॉर्ट लिस्टिंग उसी के बेसिस पे होती है। तो हो सकता है कि मुंबई में देर आर right now I think 28 companies are there, but someone might get only one shortlisting or two shortlisting, right, which I have seen every attempt I see that kind of thing। और पुणे में हो सकता है कि किसी केवल 5 कंपनीज है, लेकिन 5 में से आपको 3 कंपनीज की शॉर्टलिस्ट आ जाए। तो ये डिपेंड करता है मार्क्स और अटेम्प्ट्स के ऊपर। ये मैंने पहले भी सेशंस करे थे उससे रिलेटेड, जब हम सिटीज सिलेक्ट कर रहे थे, सेंटर सिलेक्शन के ऊपर हमने बात करी थी। तो अभी भी मेरा वही स्टैंड है जो मेरा पहले था, राइट। लेकिन आपके लिए अब जरूरी है कि आपकी जो प्रोबेबल शॉर्टलिस्टिंग है उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, राइट। हम लोग करेंगे उसके ऊपर कुछ 1-to-1 गाइडेंस सेशन वापस से प्लान करेंगे, जिसमें वी विल गाइड यू वन ऑन वन दैट विच कंपनीज यू विल हैव मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी तो ये दिख ही रही है दैट दिस इज these are the profiles, maximum companies are coming under these 5 categories। ये 5 कैटेगरी में आ रही है सबसे ज्यादा कंपनीज, राइट। ओके ग्रेट। तो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो वैसे आप लोगों ने लिखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस भी लिखे हैं, लेकिन आई थिंक अब थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे तो और बेटर तरीके से आप लोगों को मैं आंसर कर पाऊंगा। ठीक है, तो टॉपिक से रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछिएगा। यस, दैट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। सर मैं बोल रहा था, जैसे अपनी पहले डिस्कशन हुई थी तो मैंने जयपुर से सेंटर ऑप्ट कर लिया। हाँ, तो अभी वहाँ कंपनीज ऑलरेडी वैसे 3 है, उसमें भी एक पीएसयू है। तो पीएसयू की शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, वो जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है वो? देखो अभी उसमें ओपनिंग्स आएंगी, नंबर ऑफ ओपनिंग्स। ठीक अच्छा। है, तो जब नंबर ऑफ ओपनिंग्स आएंगी उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उसमें हमारी शॉर्टलिस्ट होने की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो अभी इस स्टेज पे अभी उसको एनालाइज मत करो, बट डेफिनेटली अभी आप तीनों जो कंपनीज हैं, राइट, उन तीनों के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो डेफिनेटली किसी भी फोरम पे आप डालोगे कि हाउ मेनी पीपल हैव ऑप्टेड फॉर जयपुर, तो बहुत कम आएगा। तो इसलिए हम्म। शॉर्ट लिस्टिंग की बहुत हाई चांसेस है, भले ही वहां पर 3 कंपनीज है, राइट, बट द शॉर्ट लिस्टिंग चांसेस आर वेरी वेरी हाई। ठीक बट है। सर ऐसा भी होता है सर कि शॉर्ट लिस्ट तो कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो इंटरव्यू में जो होता है वो अटेम्प्ट के बेसिस पे बाहर कर देते नहीं 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 नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, आपके अटेम्प्ट तब तक ही मैटर कर रहे हैं जब तक आप इंटरव्यू रूम के बाहर हो। जैसे आप इंटरव्यू रूम में अंदर आ गए हो, आपके अटेम्प्ट अब मैटर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने देख के ही आपको इंटरव्यू रूम के अंदर बुलाया है, राइट। तो ये पॉइंट आप लोग सब लोग ध्यान रखो। बहुत लोग मैंने देखे हैं कि इस बात को लेकर टेंस्ड रहते हैं अटेम्प्ट्स को लेके। सी दोज कंपनीज वी विच हैव क्राइटेरिया ऑफ अटेम्प्ट्स, दे आर नॉट गोइंग टू शॉर्टलिस्ट। और जो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो सर आपने जो पूरा मटेरियल पढ़ा है वो जो बस वो सारा कवर करके चले जाएं तो सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट हो? सफिशिएंट। अभी तो चल रहा है ना, अभी तो क्लासेस खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ और सेशंस और बाकी हैं। ठीक है, तो उनको पूरा पूरा स्टडी करो। अभी मैं आपको थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक भी गाइडेंस आगे के सेशंस में दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ऑल राइट, ग्रेट। और बोले, यस एनीवन। सर जैसे ये जो फर्स्ट डे पे जो कंपनीज आ रही है जो हम्म 17 लाख एंड अबव का सीटीसी दे रही है, हम्म, तो वो तो फिर अटेम्प्ट्स वालों को लेगी ही क्यों, मतलब ऐसा कुछ है? हाँ करेक्ट। डे प्रीमियर पे नॉर्मली इट इज रैंक होल्डर्स एंड फर्स्ट अटेम्प्ट और पीपल हु आर हैविंग आर्टिकल्स फ्रॉम बिग फोर। तो डे बट जैसे प्रीमियर पे एसें बट जैसे एसेंचर मुंबई में आ रही है तो वो तो जनरली अटेम्प्ट्स वालों को भी लेती है जितना मुझे पता है। वो अगर डे 3-4 पर आती है, तो अभी डे प्रीमियर पे अगर आ रही है तो डे प्रीमियर पे जनरली नहीं करती है। ओके, मतलब इनके क्राइटेरिया इस बार एसेंचर की अलग हो गई। इस बार नहीं, हमेशा यही रहता है। वो 2 बार आती है, एक बार डे प्रीमियर पे आती है और एक बार बाद में भी आती है। अभी इस बार केवल डे प्रीमियर पे अभी दिख रही है एज ऑफ नाउ।
ओके, अंडरस्टूड। अब जैसे जिसके 3 to 4 अटेम्प्ट्स हैं उनके लिए कैंपस कुछ बेनिफिशियल है, मतलब जैसे रहेगा, मेरा लेकिन डिपेंड करता है, देखो आपने कौन सा सेंटर लिया है। मुंबई, क्योंकि वही पास था मेरे यहाँ से थोड़ा। वो तो देखो, आपने जो भी सेंटर अभी लिया है उसके ऊपर डेफिनेटली, मतलब वी विल टॉक अबाउट दैट। बट वो जो हमारा सेशन एक रहेगा, दैट विल बी मोर ऑन अ वन टू वन बेसिस, वेयर वी कैन प्रोबेबली गाइड यू कि दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल शॉर्ट लिस्टिंग, एंड दिस इज ऑल बेस्ड ऑन पास। तो देखो हम भी 100% उसमें नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे कि ये एक ब्रॉड गाइडलाइन है कि डे प्रीमियर पे नॉर्मली कंपनीज रैंक होल्डर्स फर्स्ट अटेम्प्ट इनको शॉर्टलिस्ट करती है, जिनके मार्क्स भी बहुत हाई होते हैं या बिग फोर की आर्टिकलशिप होती है। तो उस तरह से वी कैन प्रोबेबली गाइड यू दैट यू शुड फोकस मोर ऑन दीज काइंड ऑफ कंपनीज रादर देन दीज कंपनीज, सो दैट आपके जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट ना हो। हाँ, और उसमें एक डाउट मेरा ये भी था कि जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें आपको कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी, लाइक, तो हाँ, हमें क्या करना चाहिए? सब फर्स्ट राउंड वाली को सबको कंसेंट दे देना चाहिए जैसे 4 ही लेनी होती है, या फिर सेकंड राउंड का भी देखना चाहिए थोड़ा? बिकॉज हो सकता है सेकंड राउंड में हमको कोई ले ही ना, देयर इज चांसेस ना। होता है, ऐसा होता है। मतलब हम लोग जो कंपनीज ड्रॉप कर देते हैं कई बार, वो हमारे इसमें से तो निकल जाती है, लेकिन और कोई ड्रॉप नहीं करता है, तो हमारे पोर्टल पे नहीं दिखती, ऐसा भी होता है। ओके। सो बट क्या ये तो करना ये थोड़ा चाहिए? सा ना इसका, ये दो चीजें जो है, राइट। एक, अगर आप लोगों के ये क्वेश्चन है कि लाइक हमारी कौन सी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, प्रोबेबल शॉर्ट लिस्टिंग, तो ये थोड़ा अगेन बहुत कस्टमाइज क्वेश्चन है। अभी इस मोमेंट पे आंसर करना डिफिकल्ट है। और दूसरा कि आपको सेकंड राउंड के लिए वेट करना है कि नहीं करना है, ये भी अगेन थोड़ा सा कस्टमाइज पॉइंट है। मैं इसमें आपको बस ब्रॉड गाइडलाइन जरूर दे सकता हूँ, लेकिन हर एक का केस अलग रहेगा। फिर भी एक जो उसका तरीका है वो बता देता हूँ मैं आपको कि कैसा होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को ओवरऑल आइडिया रहेगा कि हम लोग जब भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है, तो किस तरह से। जस्ट अ मोमेंट। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फर्स्ट राउंड में आधे लोग कंसेंट ना दे, फिर वो कंपनी सेकंड राउंड में किसी और को ले, मतलब हाँ, चांसेस तो कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता वो। चांसेस हैं उसमें, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चांसेस नहीं रहते हैं। इसीलिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा उसको क्लियरली सबको गाइड कर देता हूँ, सो सभी लोग क्लियर रहेंगे कि हमको क्या करना है अभी। ऑलराइट, तो देखो, बाकी स्टूडेंट्स भी अपने अपने जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है वो चैट बॉक्स में लिखते जाइए। ठीक है। सो राइट, टुडे इज 22nd, राइट, आज 22 जुलाई। ओके, सो 22 टू, अभी आप देख रहे हो कि कंपनीज ने आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब कर देंगी स्टार्ट, राइट। अभी तक कंपनी रजिस्टर हो रही है। ठीक है, सो 25 से आपको, सॉरी, आई थिंक इट इज 25 तक यू विल कम टू नो योर फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, राइट। 25 तक आपको पहला राउंड की शॉर्ट लिस्टिंग पता चल जाएगी, और फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड क्या होते हैं वो एक बार देख लो अच्छे से। तो देखो इसमें क्या है कि मान लो किसी ने मुंबई सेंटर लिया है, ठीक है, और मुंबई सेंटर में उनको 6 शॉर्ट लिस्टिंग आई, A B C D E and F। ठीक है, अब ये जो राउंड 1 है शॉर्ट लिस्टिंग का, ठीक है, इस राउंड 1 में इन्होंने लिया, इनको लगा कि ये तीनों अच्छी है, A B और C, ये तीनों कंपनी इनको अच्छी लगी। ये तीनों कंपनी इनको इतनी खास नहीं लगी। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि अब हम राउंड 2 के लिए वेट करते हैं। ठीक है, टोटल कितनी कंपनीज लेनी है हमको मिलाकर? 4 कंपनीज।
तो इन्होंने सोचा कि 3 कंपनीज तो मैं अभी ले लेता हूँ और एक कंपनी में कर ले लूंगा राउंड 2 में। तो 3 कंपनीज अभी ले ली इन्होंने और दूसरे राउंड के लिए इन्होंने वेट करा एक कंपनी का। ठीक है, लेकिन अब राउंड 2 जब होगा, राउंड 2 के लिए आपको मिलेगा 31 जुलाई, राइट, 31 जुलाई को आपका राउंड 2 का कंसेंट देना है। अब ये तीनों जो कंपनीज हैं जिनको आपने टाटा बाय बाय कर दिया है, अब ये टाटा बाय बाय परमानेंट हो गया है, क्योंकि ये DEF जो है ये किसी दूसरे कैंडिडेट के अकाउंट में चली गई है, ये चली गई अब यहाँ से। ठीक है, तो अब ये आपके पास राउंड 2 में नहीं आएगी, यहाँ पे ये राउंड 2 में ये वापस नहीं आएगी। अब आपके पास अगर आएगी तो कौन सी आएगी, GHI टाइप की कोई दूसरी कंपनीज आएंगी। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि यू विल गेट बेटर कंपनीज। तो जिन लोगों के अटेम्प्ट कम है, राइट, जिन लोगों के रैंक होल्डर है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, राइट, उन लोगों को फर्स्ट राउंड में जो शॉर्ट लिस्टिंग आई है, जनरली स्पीकिंग, राइट, अगेन व्हेन आई एम सेइंग जनरली, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जनरली स्पीकिंग उनको सब पहले राउंड में ले लेना चाहिए। जनरली, अगेन आई एम पुटिंग दिस वर्ड, क्योंकि अगर आपने कोई कंपनी छोड़ी यहाँ पर तो वो वापस नहीं आएगी, और कोई बेटर कंपनी के आने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि कोई भी बेटर कंपनी को छोड़ेगा। अच्छी कंपनी तो हर कोई राउंड 1 में ले ही लेगा। ठीक है, लेकिन जिनके अटेम्प्ट ज्यादा है, अब वो ज्यादा का मतलब क्या है, तो ज्यादा का मतलब कुछ भी हो सकता है, अब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग पर डिपेंड करता है। तो वो लोग वेट कर सकते हैं, इट कुड बी नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 3 4 5 वट एवर। तो वो लोग सेकंड राउंड की का वेट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिनको फर्स्ट राउंड में शॉर्ट लिस्टिंग, फर्स्ट अटेम्प्ट के लोग स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टिंग आती है, उस केस में मैंने देखा है कि उनको 10 10 शॉर्ट लिस्टिंग आती है, 12 12 शॉर्ट लिस्टिंग आती है, 15 17 18 ऐसी शॉर्ट लिस्टिंग देखी है। तो ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनको 18 शॉर्ट लिस्टिंग आई। अब लेनी तो उनको केवल 4 कंपनी से, तो वो 4 सिलेक्ट करते हैं, 14 कंपनीज आगे पास ऑन हो जाती है, राइट। तो चांसेस जरूर रहते हैं, लेकिन अगेन एज आई एम सेइंग कि ये एक बहुत ही 1 to 1 टाइप का डिस्कशन है। ठीक है, मेरे क्लास में भी हम जितने भी ऐसे क्रिटिकल डिस्कशन है, मैं ब्रॉड गाइडलाइन जरूर दे देता हूँ, लेकिन वही वो सेंटर सिलेक्शन हो या फिर कंपनी का कंसेंट देने का डिस्कशन हो, राइट, आई डू 1 to 1 राइट। इसमें हम जरा भी रिस्क नहीं लेते हैं कि मैं सबको एक प्लेन गाइडेंस दे दूं, क्योंकि सबकी प्रोफाइल अलग है, आर्टिकलशिप अलग है, सेंटर अलग है, राइट। तो इस ये एक ब्रॉड गाइडलाइन है, इसको कंक्लूसिव गाइडलाइन नहीं मानना है आपको। ओके, और जितने भी स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, राइट, आप लोगों को सबको 1 to 1 डिस्कशन करके ही कंपनी का कंसेंट देना है। तो ठीक है, सर फिर अटेम्प्ट वालों को ये करना चाहिए कि फर्स्ट राउंड में 2 या 3 ले लिए और 1 2 कंपनी के लिए अपन लेकिन सेकंड मैंने राउंड चूज आपको कर वही ले। बताया कि उसको कंक्लूसिव मत मानो अभी, राइट, ये एक ब्रॉडर गाइडलाइन है। हाँ, ओके, गाइडलाइन ऐसी है ना कि 2 पहले ले लो, 2 बाद में ले लो, जनरली अगर अगर अपन देखें तो जनरली, राइट, लेकिन अगेन अटेम्प्ट्स मैं वालों आपको के बार लिए। बार वो अपना राइडर इसलिए रख रहा हूँ कि वो कोई रूल नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी आई है कंपनीज, कौन सी आई है, किस लोकेशन के लिए आई है, राइट। अंडरस्टूड सर, हाँ, थैंक यू। ऑल राइट, ओके, सो ये क्लियर है आपको। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो चैट बॉक्स में आए। कोटक वर्किंग कैपिटल क्रेडिट मैनेजर ग्रोथ करियर, देखो क्रेडिट मैनेजर का ग्रोथ अच्छा है, राइट, मतलब इट्स अ गुड प्रोफाइल टू बी इन एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर आफ्टर दैट। ठीक है, तो अच्छा है, लेकिन एक ये जो कॉमन क्वेश्चन होता है सभी स्टूडेंट्स का कि हम एक बार क्रेडिट में चले गए, बैंक में चले गए, तो फिर हम स्विच कर सकते हैं कि नहीं इंडस्ट्री में। सो द आंसर इज नो। आप बैंक में हो तो बैंक में ही हो, ठीक है, यहाँ से स्विच नहीं कर सकते। हम एक बार इंडस्ट्री में हैं तो फिर बिग फोर में स्विच नहीं कर सकते। ठीक है, तो देर आर वेरी फ्यू प्रोफाइल जहाँ पे आप पूरा वर्टिकल चेंज कर सकते हो और पूरा फंक्शन चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल उसका है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट में अगर आप हो, खासतौर पे इंडियन प्रैक्टिस में, तो आप उसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हो और वहां से आप इंडस्ट्री में भी स्विच कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि बहुत सोच समझ के आप अपना पहला जॉब लो, ताकि आपको वर्टिकल या डोमेन स्विच करने की जरूरत ना पड़े।
क्योंकि हम लोग डोमेन स्विच करेंगे तो जितना भी काम हमने उस पीरियड में करा है वो सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप जब आपके पास इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल रहती है, राइट, यू हैव एक्सेस टू पीपल थ्रू लिंक्डइन, तो यू शुड टॉक टू देम इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी पर्टिकुलर वर्टिकल, और उनसे सारा समझ के ही ज्वाइन करो। बिकॉज हम लोग फ्रेशर्स के साथ में हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी कंसल्ट करते हैं। तो आई सी लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स जो थोड़े टाइम बाद आते हैं, बोलते हैं कि हमको प्रोफाइल स्विच करनी है, उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सीटीसी में बाद में। ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम ही हम लोग जॉब लें तो अच्छा सारे एंगल्स से हर तरह से सोच समझ के लें तो ज्यादा बेटर है। सर अगर आईसीएआई में जॉब मिल रही हो तो लेना। आईसीएआई में क्या बात है, सही है। लाइक पीयर रिव्यू बोर्ड और डिसिप्लिनरी कमिटी, मतलब डेफिनेटली अच्छा रोल है। बाकी फिर भी थोड़ा वन टू वन डिस्कशन ज्यादा है इसमें, क्योंकि देर इज नो वन लाइन आंसर फॉर सच क्वेश्चंस। ठीक है ना, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो ऐसी चीजों में आप लोग मेरे ऑफिस नंबर पे मैसेज कर दिया करो, राइट। जब भी वन टू वन कॉल होगा वो आपको उसमें ले लेंगे। और आई डू लॉट ऑफ वन टू वन सेशंस, राइट, every now and then. There are always some slots which are there. How to choose and give consent for companies, as there are two rounds and maximum is four companies, right? तो ये अभी जस्ट मैंने बताया आपको। जयपुर में पीएसयू है, उसकी बात हो गई। वेदर मल्टीपल अटेम्प्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बाय कंपनी कमिंग ऑन प्रीमियर डे, मुश्किल है, प्रीमियर डे पे मुश्किल है। ठीक है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के साथ चांसेस है क्या सिलेक्ट होने के? देखो, सिलेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको डे प्रीमियर की और डे वन की नहीं रखनी है बस। ठीक है। नहीं रखनी मतलब कम रखनी है, राइट। नहीं बोलना तो मेरे पार्ट पे गलत है। कम रखनी है, राइट। उसके बाद जो कंपनीज है उसके लिए तैयारी भी अच्छी करनी चाहिए, और उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा भी होती है। सर हाँ बोलिए। हाँ सर, अगर मैं अहमदाबाद में ही रहती हूँ, मुझे यहीं पर काम करना है हम्म। और मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं इंडस्ट्री में जाऊं या बैंक में जाऊं। मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस बैंक ऑडिट में रहा है, तो मुझे बैंक में है इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट देन आई एम नॉट गेटिंग कि इंडस्ट्री में मैं कहाँ जा सकती हूँ। ओपनिंग्स नहीं समझ में आ रहा है, लिंक्डइन पर भी दिखता नहीं है। तो हाउ वुड आई, मतलब ऑफ कैंपस भी अगर मुझे सर्च करना है, बिकॉज आई एम थिंकिंग के मे बी अगर कैंपस में नहीं हुआ। और अहमदाबाद के हिसाब से क्या रहता है, मतलब कंपटीशन और शॉर्ट लिस्टिंग का? आप वन टू वन सेशन में बोल रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी कुछ ब्रीफिंग हो पाए तो। देखो, अहमदाबाद में मतलब मेरे हिसाब से तो चांसेस हैं, क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा है कि अहमदाबाद और जयपुर में शॉर्ट लिस्टिंग तो आएगी। जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है, बिकॉज ऑफ द लेसर नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग ओवर देयर, वो तो एक पॉजिटिव बात रहती है। और अदरवाइज ऑफ कैंपस भी क्रेडिट में आजकल हर जगह अपॉर्चुनिटीज रहती है। क्रेडिट मैनेजमेंट में आप सर्च कर सकते हो, लोकल इंडस्ट्रीज को टारगेट कर सकते हो। और एक चीज जो पर्सनली मैं बार बार देखता हूँ, ऑफ कैंपस भी हम लोगों ने सेशन करा था, मेरी क्लास में भी हम लोग बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबली सिटिंग एट होम एंड देन जस्ट ट्राइंग टू क्लिकिंग ऑन दी लिंक्डइन एंड नौकरी, राइट। अप्लाई 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 अप्लाई। थोड़ा आपको फोन कॉल्स भी करने पड़ेंगे रेफरेंसेस को, और थोड़ा आपको पर्सनल भी मीट करना पड़ेगा। अगर आपका होम टाउन ही अहमदाबाद है, आप काम भी वहीं कर रहे हो, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि ट्राई टू मीट पीपल। उसकी पॉसिबिलिटी 80-90% हो जाएगी, वर्सेस अच्छा। इफ यू अप्लाई ऑन लिंक्डइन एंड नौकरी, द चांसेस इज 2%, 3%, 5%, राइट। हम्म। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। हम लोग बहुत ज्यादा टाइम उन चीजों पे स्पेंड कर देते हैं कई बार। बट द राइट थिंग इज दैट इफ यू कैन टॉक टू पीपल एंड मीट हम्म। पीपल, ठीक है, तो तो सर वो आप सबसे वॉक इन स्ट्रांग है। सजेस्ट, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ बोलिए। आप वॉक इन सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब मुझे ये पता वॉक-इन्स नहीं, करना है वॉक-इन्स कि। नहीं, वॉक-इन्स ज्यादा लोग एंटरटेन नहीं करते हैं। कोई ना कोई आपके सीनियर्स या जो भी जहाँ पे भी आपने आर्टिकलशिप करी है उनके रेफरेंस से, इफ यू विल लुक आउट, वी हैव रेफरेंसेस। अगर आपको कभी ऐसा कुछ लग रहा है कि लाइक यू आर लुकिंग फॉर रेफरेंसेस, डेफिनेटली वी हैव अ वेरी लार्ज कम्युनिटी, राइट। तो वी आल्सो हेल्प इन प्लेसमेंट असिस्टेंस, ठीक है। तो अगेन ऐसा कुछ वन टू वन अगर आपको असिस्टेंस चाहिए, सो रीच आउट टू आवर ऑफिस, दे विल गाइड यू, दे विल कनेक्ट विद मी देन, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और, जैसे सपोज हम लोग 1-2 साल स्टार्टिंग में बैंक में काम कर ले और उसके बाद हमें
किसी कॉर्पोरेट में जाना हो तो ये वर्थ इट होता है या नहीं? बैंक्स के बाद नहीं, बैंक्स के बाद देखो कॉर्पोरेट मतलब वही पूरा हम लोग डोमेन स्विच कर रहे हैं, तो डोमेन स्विच करने में प्रॉब्लम आती ही है। एक तो पहला सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जॉब ही नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है डोमेन स्विच करने में। क्योंकि अ, आप मान लो 3 साल आपने बैंक में काम किया, फोर्थ हुँ, ईयर यू आर लुकिंग आउट, तो पीपल विल ऑलवेज लुक फॉर पीपल जिनको 3 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो। क्योंकि आपको बैंकिंग एक्सपीरियंस है और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर ऐसे केस में इंडस्ट्री में डायरेक्टली जंप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट एज़ अ फ्रेशर तो ले ही सकते हैं ना वो अपने को फिर? एज अ फ्रेशर सीटीसी ले कब सकते मिलेगा? एज अ फ्रेशर ले सकते हैं, लेकिन हु, बट उसमें भी चैलेंज है ना, वो फिर फ्रेशर को ही लेते हैं। हाँ, वो अगर भी एज अ है। फ्रेशर लेना है तो आपकी फिर फ्रेशर से कंपटीशन होगी। तो सर तो फिर तो फर्स्ट जॉब के बेसिस पे अपन पूरी अपनी लाइफ थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। देखो फर्स्ट 6 मंथ्स और फर्स्ट 1 ईयर यहाँ पे फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी आप, ओके। मतलब ये है कि एक गलती माफ है, राइट? आपने एक जॉब लिया, आपको 2 महीना 4 महीना समझ नहीं आया, आप स्विच कर लो। लेकिन वो गलती ये है कि आप जल्दी से जल्दी निकल जाओ वहां से। अगर आपको लग रहा है ना कि 6 मंथ्स में कि ये सही नहीं लग रहा है जॉब, तो फिर डू नॉट वेट फॉर 1-2 इयर्स। अब आप फिर निकल जाओ, 6 महीने में समझ आया तो 6 महीने बाद निकलो, 8 महीने में समझ आया 8 महीने में निकलो। लेकिन जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें फिर भी इंडस्ट्री आपको एज अ फ्रेशर कंसीडर करती है। 1 साल 2 साल स्पेंड करने के बाद फिर ज्यादा स्ट्रगल। स्ट्रगल होता है बट चांसेस तो रहते हैं ना फिर भी अपने। हाँ हाँ हाँ, देखो बीइंग अ सीए ये कभी प्रॉब्लम नहीं है कि जॉब नहीं रहेगी। 100% आप किसी भी स्टेज पे हो गए आपको जॉब 100% मिलेगी। बट फिर अपने फिर वही जो फ्रेशर वाली सीटीसी है उस पे आ जाएंगे फिर अपन, अगर डोमेन स्विच करे तो। हाँ बोल सकते हैं। ओके सर। सर आप रिलायंस के बारे में थोड़ा बता सकते हैं उनके क्राइटेरिया क्या है? जैसे मैंने सुन रखा है कि वो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को ही लेते हैं। रेयरली उन्होंने सेकंड को भी लिया है, बट अभी आई थिंक रिलायंस दिख नहीं रही है इस लिस्ट में। हाँ, मतलब ऑफ कैंपस अगर जैसे बहुत लोग करते हैं, मेरे यहाँ से जान पहचान में काफ़ी गए हैं उधर। हालांकि वो सब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट मल्टीपल अटेम्प्ट्स। देखो कैंपस में अभी तक जो मैंने देखा है वो डे 1 पे पार्टिसिपेट करती है, और डे 1 पे मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट। डे सेकंड अटेम्प्ट भी मैंने कुछ देखे हैं, लेकिन उनके शायद मार्क्स 60% के ऊपर थे, बट मोस्टली इट इज फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, फिर 2-3 साल बाद अगर अपन को एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद तो देयर इज चांसेस ना कि वो हमें ले सकते हो। एक्सपीरियंस के बेसिस पे सब कंपनीज लेती हैं, ओके सर। राइट? डेलोइट का इंटरव्यू दिया आज, ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है। डेलोइट का जिनने भी इंटरव्यू दिया है, राइट, वो लोग बता देंगे, आप ग्रुप पे भी पोस्ट कर देना, राइट? शॉर्ट लिस्टिंग कौन से डे से स्टार्ट होगी? तो शॉर्ट लिस्टिंग बेसिकली बस अब स्टार्ट हो जाएंगी, अब आना स्टार्ट हो जाएगा आपके पोर्टल पर। 25th आई थिंक इज द डेट। एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, व्हाट इज द डे फॉर यू टू गिव कंसेंट। तो आपके लिए जो डे रहेगा, आपके लिए है बेसिकली 22nd to 25th, राइट? दिस इज द फर्स्ट राउंड शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। और ऑनलाइन कंसेंट गिवन बाय कैंडिडेट 26 to 28, राइट? तो जनरली तो 26 को आपके पोर्टल पे दिख जाना चाहिए, राइट? लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ कंपनीज 27 तक भी दिख सकती है, ठीक है। सो ऑन 26 एंड 27 ये 2 दिन आपके लिए डेफिनेटली बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, क्योंकि उस दिन आपको कंसेंट देनी रहेगी, ओके। तो ये थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा, दिस इज अ इम्पोर्टेंट डिसीजन, ठीक है। बहुत अच्छे से एनालाइज करके फिर देना। मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स थोड़ा हेस्ट में आके थोड़ा सीटीसी के चक्कर में कंसेंट दे देते हैं, ओपनिंग्स वहां पर ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो पूरा एक बैलेंस आउट करके देना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और उसके बाद सेकंड राउंड के बाद, और सेकंड राउंड की कंसेंट 31st को देनी, तो अभी आपको 3 दिन तो वेट करना है। 22nd, 23rd, 24th, 25th और 26th को आपके लिए
इम्पोर्टेंट डे रहने वाला है। ठीक है, ओके, सर और क्या क्वेश्चंस हैं? सर एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं और हम्म प्लेसमेंट का जो मतलब जैसे कि मैं अहमदाबाद में हूँ तो 17 से स्टार्ट हो रहा है ओरिएंटेशन वगैरह, अगर उसके पहले मेरा ऑफर लेटर रिलीज कर देते हैं ऑफ कैंपस हम्म तो मैं उन मतलब क्या कर सकती हूँ मुझे फिर ऑफ, और मुझे ऐसा हो कि नहीं मुझे थोड़ा बहुत कैंपस में ट्राई करना है अभी, तो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन? अभी देखो, ऑफ कैंपस अगर आपको ऑफर मिल रहा है तो अच्छी बात है, ले लेना चाहिए। बट अगेन, अब तो शॉर्ट लिस्टिंग आपको, मतलब अब तो आपको कंपनीज दिख रही हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं। एक दो दिन में और थोड़ा उसको एनालाइज कर लो कौन सी कंपनीज ज्यादा करके पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंड देन डू अ कंपैरिजन कि लाइक ये कंपनीज, सीटीसी तो आपको पता ही है, हम्म। राइट। और 3 दिन के बाद आपको पोर्टल पे दिखने लग जाएगा, उनका रोल भी क्लियर हो जाएगा। बस फिर तो आप क्लियर डिसीजन ले सकते हो। अच्छा, तो मतलब मुझे क्वेश्चन यही है कि मैं ऑफ कैंपस बैंक में देख रही हूँ और मुझे इंडस्ट्री का थोड़ा चाहिए, अगर मतलब प्लेसमेंट में मिलता है तो वो मैं बोल रही हूँ कि कंपैरिजन सर मैं कैसे करूंगी? कंपैरिजन देखो, ये आपकी प्रायोरिटीज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, सबकी हम्म। प्रायोरिटी अलग होती है, किसी को सीटीसी, किसी को डोमेन, राइट, किसी को सिटीज, सबकी अपने अपने प्रायोरिटीज है। तो ये अब आपकी प्रायोरिटी क्या है उसके ऊपर आपको कॉल लेना है। किसी को वर्क लाइफ बैलेंस, राइट, तो हम्म। सबका अलग अलग रहता है। तो ये अब आपका पर्सनल चॉइस है। ओके, विच तो वन वो यूर, पेनल्टी वाला जो था कैंपस प्लेसमेंट में कुछ, वो कब हिट होता है वो क्लॉज? जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो फिर ज्वाइन नहीं करते हो तब। मतलब ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद मैं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ? जब आप ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो फिर ज्वाइन नहीं करते हो तब। ओके ओके। तो अगर मैंने कंसेंट दे दिया और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद और फिर मैं अगर इंटरव्यू अपीयर कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ ऐसा कुछ सिचुएशन वो हुआ नहीं तो है, वो नहीं है। वो चलेगा ना, उतना तो हाँ, चलेगा? अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ग्रेट, चलो ग्रेट। राइट, सो एक लास्ट क्वेश्चन और है कि लाइक, नहीं, एक दो क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, ओके, सो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े। यस, आप लोग को एक बात क्लियर है कि बेसिकली इट इज इंडस्ट्री, बिग फोर, फर्म एंड पीएसयूज। ठीक है, अब तो इस बात में आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि अगर ये सब टाइप की अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, तो हमें फिर विदाउट एनी डिले वी शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग सर्टेन थिंग्स। ओके, तो ब्रॉडली व्हाट आई थिंक दैट आप लोग अभी इन सब चीजों से बाहर निकल के आप थोड़ी सी तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज की सबसे ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग आती है। इंडस्ट्रीज का जॉब डिस्क्रिप्शन अगर देखते हैं, राइट, तो मोस्टली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सबसे ज्यादा जॉब आएंगे। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जॉब आएंगे, इसका मतलब ये है कि इसका एक स्नैपशॉट ले लो आप, व्हाट टू प्रिपेयर इंडस्ट्रीज के लिए। इंडेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीएसटी, इनकम टैक्स और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, उसके भी आगे मैंने लिखा हुआ है व्हाट शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। So case based and application based questions of 115, 116, 16, 2, 12 and 109, राइट। और फिर हर कंपनी से स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड है वो प्रिपेयर कर सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो एनपीवी, आईआरआर, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर, लॉट ऑफ कंपनीज जिसमें सीएफओ राउंड होता है उसमें वो कंप्लायंस के क्वेश्चंस कम पूछते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज्यादा पूछते हैं। जीएसटी के लेटेस्ट काउंसिल मीटिंग के चेंजेस, कोई इंपॉर्टेंट अगर बजट में कोई चेंज आया है, कोई सर्कुलर है बहुत इंपॉर्टेंट, और बाकी बेसिक चीजें, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, आईटीसी, रिफंड एंड इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स। ठीक है, इनकम टैक्स में अगेन जो भी लेटेस्ट चेंज आए बजट में, दैट वन, जो इनकम टैक्स का नया बिल प्रपोज होने वाला है उसके बारे में, उसका एक ओवरव्यू, टीडीएस के सेक्शंस, ठीक है, और थोड़ा कॉर्पोरेट टैक्स की डिडक्शंस, मैट, मतलब बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स आप देख के जा सकते हो। एंड देन देयर आर सम थिंग्स रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस। अपनी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के ऊपर थोड़ा ज्यादा डीप डाइव होता है। ओके, कैंपस में सबसे अच्छी बात ये होती है कि नॉर्मली एक या दो इंटरव्यू में आपको सेम डे रिजल्ट मिल जाता है।
राइट। लेकिन वो जो एक या दो इंटरव्यू होते हैं वो थोड़े से टिपिकल टाइप के होते हैं, तो वहां पर हम लोग को कोई भी मतलब मिस्टेक नहीं करनी है। प्रिपेयर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस क्वाइट इन डिटेल, ठीक है। बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो रेशियो एनालिसिस, क्रेडिट मैनेजमेंट, अबाउट बैंकिंग सेक्टर एंड जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री, राइट। ये आप प्रिपेयर कर लोगे, आई थिंक दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। अगर कोई कंपनी क्रेडिट के लिए आ रही है तो ना आपको टैक्स पढ़ना है, ना आपको इंडेस पढ़ना है, ना आपको ऑडिट पढ़ना है, राइट। सब चीजों से आप बच गए। आपको केवल अच्छे से क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ना है, रेशियो एनालिसिस एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करते हैं फर्म्स की, तो फर्म्स डेफिनेटली अलग अलग रोल्स के लिए आती है, लेकिन सबसे कॉमन जो रोल है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम लोग जो नॉर्मली क्लास में कवर करते हैं वो ये सारे टॉपिक्स ब्रॉडली कवर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम हाउ टू परफॉर्म एन ऑडिट, राइट। आप चाहो तो इसका एक स्नैपशॉट ले लो, राइट। बहुत बार हमने देखा है कि इन टॉपिक्स में से ऑडिट के क्वेश्चंस पूछे गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें आप लोग कर सकते हो। अभी लाइक दोज हु डू नॉट हैव टाइम, राइट, आप हमारे जो लेटेस्ट लेक्चर्स हैं, राइट, वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ले सकते हो। उसमें ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड, बिकॉज देखो हम लोग इस स्ट्रेटेजी पे चलते हैं कि आपको डोमेन पता नहीं चलता है, राइट। कई लोग बोलते हैं कि पहले हम डोमेन डिसाइड करेंगे फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे। वो गलत स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कैंपस में आपको पता नहीं कौन सी कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी, तो आपको सभी डोमेन्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। आपने मान लो एफआर की तैयारी करी हो और कंपनी क्रेडिट के लिए आ गई, तो फिर क्या करोगे? इसलिए सब डोमेन्स की अच्छी तैयारी रखो, ब्रॉड तैयारी, राइट। तो इसलिए इंडेस, ऑडिट, एचआर के क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट, इन सभी टॉपिक्स को मेरे हिसाब से आपको अभी से ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग आने के बाद कोई रश ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो ये जिन लोगों को टाइम नहीं है और रिकॉर्डेड सेशंस पर जाना है, राइट, दे कैन सर्टेनली गो फॉर द रिकॉर्डेड सेशंस, ओके। और जो लोग अटेंड कर सकते हैं, फ्रॉम 24th वी विल बी स्टार्टिंग द न्यू बैच, राइट। और उस दैट विल बी फॉर 9 days, राइट। 9 days की वो बैच रहेगी। उसमें अगेन वी विल बी कवरिंग आउट ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, राइट। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मैं एक बात बोलूंगा, क्योंकि क्लास में भी बार बार ये बात आती है कि लाइक सर हम क्या पढ़ें, राइट। यहाँ पे पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ज्यादा जरूरी है। आप लोग अगर सीए फाइनल की बुक्स फिर से पढ़ोगे तो आपके लिए उतनी यूजफुल नहीं रहेगी, राइट। इट इज मोर ऑफ लाइक हाउ यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नया नया पढ़ के आपको फायदा नहीं होगा। आप चाहो तो you can go to our website and you can watch this demo lecture of Indes 115. How we have discussed that 115, this is how your actual interview will be conducted, right? आप ये देख सकते हो, आप मटेरियलिटी का डिस्कशन देख सकते हो। देयर विल बी डिस्कशंस दैट आर गोइंग टू हैपन। आपको ये नहीं पूछेगा आपसे कि लाइक टेल मी अबाउट मटेरियलिटी, अब ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे एंड इट विल डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो डिस्कशन देखो या डिस्कशन करो, राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। तो आप लोग ये जो डेमो लेक्चर्स हैं, डेमो लेक्चर्स को देखो और इसके हिसाब से अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप करो कि ओके दिस इज हाउ आई हैव टू रिप्लाई इन दी माय एक्चुअल इंटरव्यूज, ठीक है। सो विल शेयर दैट इन दी ग्रुप, ओके। तो दैट इज समथिंग विच आई बिलीव, जहाँ पर स्टूडेंट्स कई बार गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अभी एक्शनेबल यही है कि हम लोग इंडेस को खास तौर पर पढ़ें, और इंडेस अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, ये जो प्राइमरी इंडेस हैं, तो उसके बाद फिर आप बाकी इंडेस को कवर करो, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अभी भी आपने किसी से एक्सपीरियंस लिया होगा तो उन्होंने आपको यही बोला होगा कि 115 पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट रीडिंग विद दैट वन, ठीक है। तो ये कुछ थॉट्स थे विच आई आई वाज बिलीविंग दैट आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ यू, ओके। बट आप लोगों का और भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आई एम डेफिनेटली विल बी हैप्पी टू आंसर दैट।
I need help with articleship experience. Yes, आपने बोला भी था मुझे. Yes, what topic to be studied for internal audit? Internal audit के लिए again it's more of some processes, right, that you have to study. ठीक है, some processes are required. Okay, all right. So great. This is what I was we have planned. अब आगे का जो सेशन रहेंगे हमारे उसमें डेफिनेटली वी विल अपडेट द लिस्ट. हम लोग इसमें लिस्ट को अपडेट कर देंगे और इसमें ये करेंगे कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आएंगी, राइट, उनको उस उनके अटेम्प्ट के हिसाब से भी वी विल स्टार्ट गाइडिंग. ठीक है, तो जिसका जितना अटेम्प्ट रहेगा उसके हिसाब से वी विल टेल देम दैट ओके आप इस चीज को ज्यादा करके फोकस करो ताकि आपका टाइम उस चीज में ही ज्यादा स्पेंड हो, बाकी चीजों में खराब. Right. Okay, great, guys. Once again, thank you very much. It was great interacting with all of you. Yes. And we will take a 5 minute of break. ठीक है, और उसके बाद जो हमारी रेगुलर क्लास है आज, ठीक है, फाइनेंस टॉपिक, we will